Hello students and welcome to G3 e-learning classes of class 11th. Today we are going to do our next chapter number 3, Discovering Tut. The saga continues. So first of all, I'll tell you something about the lesson. This interesting account of a great discovery brings home the point that man is always curious to solve past mysteries. It takes us to Egypt, the land of mummies. I hope you all know. The discovery of Tut Tomb in 1922 led to many other archaeological discoveries and researches. Though Carter is here, archaeologist, was quite crude in handling Tut's mummy. His efforts at least saved the mummy from robbers and thieves who might have destroyed it totally to extract its golden adornments. It was on 5th January 2005 that Tut's mummy was scanned to know the secret of Tut's sudden death at a young age. The scanned images assured the world that nothing was unnatural about Tut's death. So let's start our chapter. He was just a teenager when he died. Means in this chapter we will read about the Tut, the former king of Egypt. हम उसके बारे में पढ़ेंगे and he was died when he was around 13 to 19 years old. The last heir of a powerful family, means last heir means the person to be the next king. Okay, so the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. कि वो last रूलर था अपने एम्पायर का जिसने इजिप्ट पर राज किया फॉर सेंचुरीज. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. He was laid here, laid in the grave means उसको जो है उसकी कब्र, grave you all know कब्र होती है, उसकी कब्र में लिटा दिया गया, उसको लिटा दिया गया. और लेडन मीन्स लाद देना. ओके, लेडन विद गोल्ड, बहुत सारे गोल्ड के साथ. एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और भुला दिया गया. सी, आप लोगों ने अपनी हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा कि हमें जो है बहुत सारी जो कब्र हैं, ग्रेव्स हैं, ऐसी मिलती हैं जहाँ पर डेड बॉडी के साथ उसके डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं, उसके बिलोंगिंग्स होती हैं, उनको भी साथ में दफना दिया जाता है. तो इजिप्ट में बहुत सारी ग्रेव्स ऐसी हैं जहाँ पर बहुत सारा जो डेड बॉडीज़ के साथ जो है बहुत सारा गोल्ड और उनकी जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो भी हमें मिली हैं. तो यहाँ पर भी जो तुट है उसके ग्रेव के अंदर भी हमें बहुत सारा जो गोल्ड है, इवन उसका जो कैफिन है यानी कि जो वो बॉक्स है जिसमें उसको लिटाया गया है वो भी गोल्ड से बना हुआ है. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922, the modern world has speculated about what happened to him. जो फर्स्ट डिस्कवरी की गई थी उसकी टर्म की वो था 1922 में. ओके, कि ताकि जो है मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि जो अभी हम लोग जिस करंट एज में हैं उसको मॉडर्न वर्ल्ड कहा जाता है, कि उसको उसके मर्डर के बारे में हम पता लगा सकें. नाउ लिविंग हिज टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. अब क्योंकि जो फर्स्ट इसका जो डिस्कवरी हुई थी वो 1922 में हुई थी और अब उसके 80 years के बाद फिर से जो है उसकी कब्र को खोला गया और अब जो है उसकी बॉडी का CT स्कैन जो है किया जाएगा और ये क्लू निकाला जाएगा कि उसकी डेथ कैसे हुई. And provides precise data, means important data for an accurate forensic
रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयश फेरो. फेरो मीन्स यहाँ पर राजा को कहा जाता है. इजिप्टियन किंग्स जो होते थे उनको फेरो कहा जाता था. तो अब ये जो सिटी स्कैन होना था ये इसलिए होना था कि हम जो है एक्यूरेट और इम्पोर्टेंट डेटा को कलेक्ट कर सकें कि उसकी जो डेथ है वो कैसे हुई थी. वॉज इट नेचुरल और वॉज इट अ मर्डर. एन एंग्री विंड stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place. Resting place क्या है? His grave. Okay, जिसमें उसको दफनाया गया था. In the ancient Egyptian cemetery. Cemetery means here the burial place, जहाँ पर dead bodies को दफनाया जाता है. In Hindi you can say the Kabristan, known as the Valley of Kings. Dark-bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey. Here, dark-bellied clouds means dark and the blugging clouds कि बहुत dark जो clouds हैं scudded means moving swiftly बहुत ही तेज़ी से जो है वो आ रहे थे इस desert की तरफ. And sky all day and now were veiling the stars means cascade grey. और ये जो स्टार जो स्काई में जो स्टार्स होते हैं कास्केट ग्रे मीन्स ग्रे कलर की कास्केट यानी कि बास्केट के जैसे लग रहे थे कि मीन्स ये जो क्लाउड्स हैं ये बास्केट के जैसे स्टार्स को अपने अंदर भरे हुए हैं. इट वॉज 6 PM on 5 January 2005, the world's most famous mummy glided. Glided means covered with gold, right? Had first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. कि शाम के 6 बजे थे. 5 जनवरी 2005 का टाइम था. द वर्ल्ड मोस्ट फेमस जो ममी थी वो जो है वो पूरा गोल्ड से भरी हुई थी. मीन्स उसकी बॉडी पर गोल्ड ही गोल्ड जो है रखा गया था. उसे सिटी स्कैन के लिए लेके जाना था और इस यंग रूलर को समझने के लिए कि इसकी जो डेथ है वो कैसे हुई है इसको इसकी कब्र से 3,300 ईयर्स अगो जो पहले मरा था उसको अब निकाला जाएगा. ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट tomb some 26 feet underground to pay their respect. कि दोपहर के टाइम जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टूरिस्ट थे वो देखने आए थे. डिसेंडेंट मीन्स हियर इकट्ठा हो जाना. ठीक है, वो सब इकट्ठे हो गए थे और कहाँ इकट्ठे हुए थे? 26 फीट अंडरग्राउंड. एक जगह है 26 फीट जो कि ग्राउंड में नीचे थी और रॉक कट और जो कि एक रॉक को कट करके बनाई गई थी. अपनी रिस्पेक्ट इस डेड बॉडी को दिखाने के लिए जो है ये लोग इकट्ठा हुए थे. दे गेज्ड मीन्स घूरना. एट द म्यूरल्स. म्यूरल्स होता है जो केव के अंदर या जो ग्रेव्स के अंदर जो पेंटिंग्स की जाती है वॉल्स के ऊपर ब्यूरल चैम्बर के अंदर, उसको म्यूरल्स कहा जाता है. एंड पियर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस. यहाँ पर क्या है कि उसके फेस पर भी जो है वो गोल्ड वहाँ पर जो है रखा गया है. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड. जो मोस्ट स्पेक्टेक्युलर जो था इस ममी के उसमें ग्रेव में था वो क्या था? कॉफिन का जो लिड था. कॉफिन क्या होता है? वो बॉक्स होता है जिसमें डेड बॉडी को लिटाया जाता है, रखा जाता है. उसका लिड यानी कि जो उसका ढक्कन था वो था. वो क्यों था? क्योंकि वो शेप जो है वो मैं आगे इसको आपको दिखाऊंगी. सी आई थिंक वी हैव
हेयर, वो ऐसा कुछ जो है उसकी शेप दिखती थी। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, विस्पर मीन्स वेरी स्लो वॉइस, ओके। तो जो सम विजिटर्स हैं वो गाइड बुक में इसके बारे में पढ़ रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ जो है वहाँ चुपचाप खड़े हुए थे। परहैप्स पॉन्डरिंग तुट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, और वंडरिंग विद अ शिवर इफ द फेरोज कर्स। जो कुछ विजिटर थे वो ये भी डर रहे थे कि जो ये जो फेरो यानी कि अब जो इसकी कब्र से इसको निकाला जा रहा था, तो ऐसी मान्यता है कि अगर डेड बॉडीज़ को उनकी कब्र से निकाला जाता है तो वो श्राप देते हैं। कर्स मीन्स श्राप, ठीक है। तो कि और ये भी जानना था कुछ का जो एम था वो ये जानना था कि इस जो तुत की जो डेथ है वो उसकी लेट टीन में कैसे हुई, ठीक है, वो जानना चाहते थे। डेथ और मिसफॉर्च्यून, वो डेथ थी या मिसफॉर्च्यून था, फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वॉज रियली ट्रू। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, ठीक है। कार्टर मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, ही वॉज एन आर्कोलॉजिस्ट, जो जिसने सबसे पहले जो तुत की जो ममी है उसको बाहर निकाला था। उसकी कंडीशन जो है कार्टर की वजह से ख़राब हो गई थी। ये भी मैं आगे जो है आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसे। सेड ज़ही हवास, ज़ही हवास एक और आर्कोलॉजिस्ट हैं, सेक्रेटरी हैं जर्नल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़। as he leaned over the body for a long first look, कार्टर हॉवर्ड कार्टर। अब ये जो कार्टर हॉवर्ड कार्टर हैं इनके बारे में ज़ही हवास ने बताया था कि उन्होंने 1920s में जो है इसकी मम्मी की जो कंडीशन है वो उनकी वजह से बुरी हुई। वो क्यों हुई? वॉज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड Tut's tomb after years of futile searching. Its contents, though hastily ransacked in antiquity, कि हालांकि जो इसकी जो कंडीशन है वो ख़राब हो गई थी, वर सरप्राइजिंगली complete. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee restruction. Restruction means rebirth, ठीक है, दोबारा से जन्म लेना. Caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. कि जब कार्टर ने बहुत सालों की सर्च के बाद, ठीक है, जब इसकी फिटाइल मीन्स यूजलेस सर्चिंग थी, कि सर्चिंग के बाद जब इसको ढूंढ निकाला तो उनके जितने भी उन्होंने रिसर्च किया था वो उस टाइम पर वेस्ट था, क्योंकि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट नहीं थी, तो वो कुछ ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं लगा पाए. कौन नहीं पता लगा पाए? कार्टर. और क्या नहीं पता लगा पाए कि उसकी डेथ कैसे हुई थी. लेकिन उस टाइम पर जब इस रॉयल कलेक्शन को देखा गया तो लोग इससे बहुत ही, इस फ़ैरोह से जो है बहुत ही इम्प्रेस हुए थे. स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स थे गोल्ड के और बहुत ही ब्रिलियंट जो काम था इसका. तो और ये तब भी अटेंशन में थी एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन. और आज भी जब ज़ही हवास जब इसको दोबारा से इन्होंने इसकी कब्र से निकाला तो आज भी इसने वर्ल्ड की अटेंशन को यहाँ पर गेन किया था. बट तुत वॉज ऑल्सो ब्यूरिड विद एवरी डे थिंग्स ही हैड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ. आफ्टर लाइफ मीन्स लाइफ आफ्टर डेथ. ठीक है, ये पुरानी जो हमारी मान्यताएं थी उसमें ये माना जाता है कि मरने के बाद भी एक लाइफ होती है. तो इजिप्ट में भी ऐसा मानना था
और वो लोग ये मानते थे कि अगर कोई मर जाता है और उसकी ग्रेव में जो है उसकी डेली यूज़ यानी कि जो भी उसकी चीज़ें वो अपनी लाइफ टाइम में यूज़ करता था या करती थी उसको दफनाया जाएगा, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आफ्टर लाइफ भी उस पर्सन के काम आएंगी। बोर्ड गेम्स था उसमें, उसकी जो ग्रेव थी उसमें बोर्ड गेम्स था, अ ब्रोंज रेजर था, लिनन अंडरगारमेंट्स थे, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, ये सब जो है उसके साथ तुत के साथ दफनाया गया था। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनरी ट्रेजर मीन्स जो फ्यूनरी ट्रेजर यहाँ पर क्यों बोला गया है, क्योंकि उसके जो कब्र में बहुत सारा सोना था, बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स थे, ठीक है। और आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनरी ट्रेजर, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिंग हिज 3 नेस्टेड कैफिन्स। 3 नेस्टेड कैफिन्स थे मीन्स एक कैफिन के अंदर दूसरा कैफिन के अंदर तीसरा कैफिन और उसके अंदर जो है तुत की बॉडी को जो है रखा गया था। तो वो ये सारा का सारा उसने इन्वेस्टिगेट किया, उसकी रिकॉर्डिंग की, मीन्स उसको एक एक लिस्ट बनाई कि जो इसकी जो ग्रेव है, जो उसका कैफिन है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हैं। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड होता है कफन, एडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स। तो सबसे पहले जब उसकी जो कब्र को खोला गया तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें क्या है, एक तो श्राउड है और दूसरा गार्लैंड्स। आपने देखा होगा कि गोल गोल जो है एक फूलों के जो हम डेड बॉडीज़ पर चढ़ाते हैं, गोल गोल जिस पे फूल और पत्ते लगे होते हैं, फ्लावर्स एंड लीव्स होते हैं, तो उनको कहा जाता है वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स जो है वहाँ पर मिले उसकी कब्र में। द फेडेड एविडेंस ऑफ अ ब्यूरल इन मार्च और अप्रैल, क्योंकि जो कॉर्नफ्लावर है और जो लोटस पेटल्स हैं वो मार्च और अप्रैल मंथ में ही उगते हैं, तो इसीलिए जो है ये माना जाता है, ये फेडेड एविडेंस है कि इसकी जो डेथ है वो मार्च या अप्रैल के महीने में हुई थी। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, तो उसने देखा कि उसको कुछ मुश्किल आई जब वो मम्मी तक जो है कैफिन तक पहुंचा। The ritual resins had hardened, cementing tooth to the bottom of his solid gold coffin. अब हुआ क्या था कि जो केमिकल्स उसकी बॉडी पे, क्योंकि ये प्रिजर्व करने के लिए उस टाइम पर जो है ना बहुत सारे केमिकल्स ये लोग डेड बॉडी पे यूज़ करते थे, और क्योंकि बहुत सारा गोल्ड है, गोल्ड भी जो है एक हीट में मेल्ट हो जाता है। तो अब हुआ क्या था कि जो टूथ था उसकी बॉडी जो है उसके गोल्ड कैफिन में वहाँ पर चिपक गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेगिमिटेट legitimate force could move them. Carter wrote letter what was to be done. अब क्योंकि इसको यहाँ से अलग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, तो कार्टर ने एक लेटर लिखा अपने हायर अथॉरिटीज़ को कि अब क्या किया जाए। The sun can beat down like a hammer दिस फार साउथ इन इजिप्ट। अब उसने क्या किया कि उसकी बॉडी को जो है ना वो सन हीट में लेकर जाता है, और ये था कि जो सन बीट है वो क्या कर सकता है, लाइक अ हैमर यूज़ करेंगे उसको सन हीट को इसकी बॉडी पर, ठीक है। एंड कार्टर ट्राई टू यूज़ इट टू लूजन द रेजिन्स, और जो सन हीट को कार्टर ने यूज़ किया था कि इसकी जो बॉडी जो है या रेजिन यानी कि जो केमिकल से वो थोड़ा सा लूज़ हो जाए और इसको वहाँ से निकाल पाएँ। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पर ब्लेजिंग मीन्स यहाँ पर बर्निंग, ओके।
तो बर्निंग जो सनशाइन थी, कार्टर ने उसको वहाँ पर जो है बहुत घंटों तक रखा और हीट किया 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। नथिंग बर्स्ट, लेकिन कुछ भी जो है इससे फ़ायदा नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. Burst means to move. ओके, नथिंग बर्स्ट मीन्स यहाँ पर है कि कुछ भी जो है वो मूव नहीं कर पाए, मीन्स उसकी बॉडी जो है वो मूव नहीं हुई। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट, और उसने ये कहा कि जो कंसोलिडेटेड मटेरियल है हैड टू बी चिजल्ड। चिजल मीन्स हियर कि सेपरेटेड विथ चिजल, की छेनी से उसको जो है उसको चिजल, छेनी से उसको beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remain, कि छेनी से उसके limbs और trunk को जो है वो उठाया जाएगा या उसको खुरच कर निकाला जाएगा, तभी जो है वो किंग्स के जो रिमेन्स हैं उसको हम उठाने के जो लायक हो जाएंगे। सो दिस इज़ द मैप। अफ्रीका में है ये इजिप्ट। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। इफ ही हैडंट कट द ममी फ्री, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. अब क्योंकि कार्टर जो है वो अपने उसके पास सिर्फ थोड़ी ही चॉइसेस थी, क्योंकि अगर वो जो है मम्मी को फ्री नहीं करता, मीन्स वहाँ से नहीं निकालता, तो जो चोर हैं वो गार्ड को धोखा देकर जो है एंट्रैप्ड करके उनको सर्कमवेंटेड का मीनिंग होता है एंट्रैप्ड। ओके, तो गार्ड्स को एंट्रैप्ड करके वो जो है उसको वहाँ से निकाल सकते थे और जितना भी गोल्ड था उस मम्मी का वो सारा वहाँ से ले सकते थे। तो टाइम द रॉयल्स वर फेब्युलसली wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. अब वहाँ के जो भी रॉयल्स थे और मीन्स टुट जो है एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था और वो बहुत ही वेल्दी था, मीन्स बहुत ही अमीर था। एंड दे थॉट, और उनको लगता था, और होप्ड, और उनको ऐसा आशा भी थी कि दे कुड टेक देयर रिचेज़। रिचेज़ हियर मीन्स कि जितनी भी लेविश चीज़ें हैं वो उनको अपने मरने के बाद भी जो है वो दूसरी दुनिया में लेके जा सकते हैं। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, यानी कि जो उसके अंदर जो कब्र में हमें मिलते हैं precious collars मिलते हैं जो वो अपने लाइफ टाइम में यूज़ करता था। inlaid necklaces and bracelets, ring, amulets, amulets होते हैं मीन्स बॉडी को कवर करने के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है। अ सेरिमोनियल एप्रन, सैंडल्स, सेट ऑफ हिज फिंगर के सेट, इसको यू कैन से कि कवर होते हैं फिंगर्स को कवर करने के, लाइक रिंग होती है चपटी वाली, एंड टोज एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। और ये जितनी भी चीज़ें थी वो सब किसकी थी? प्योर गोल्ड की थी। To separate Tut from his adornments means jewelry. Carter's men removed the mummy's head and served nearly every major joint. कि इन सब चीज़ों को अलग करने के लिए कार्टर और उसके जो साथी थे, यानी कि जो उस पर काम कर रहे थे, उन्होंने उसका जो हेड है वो अलग कर दिया और जितने भी मेजर जॉइंट्स हैं उनको भी जो है नुकसान पहुंचा। Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. और जब उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया, दे रिसेंबल्ड, उन्होंने पूरी बॉडी को रिसेंबल किया, रीअसेंबल्ड किया एंड उसको जो है ना वुडन के एक बॉक्स के अंदर सैंड के ऊपर जो है लिटा दिया और जो जितने भी डैमेज थे उनको रिकवर करने की कोशिश की।
द बेड वेयर तुट्स नाउ रेस्ट, और अभी भी जो उसकी बॉडी उसी बेड पर रेस्ट कर रही है. सो वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट of this chapter in the next video. Thank you so much.